Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333886. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं पुराने करंट अफेयर्स एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो जोहार रेड्डी, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है केरला के एक अभी ग्रीन स्टार्टअप को मिला है क्लाइमेथॉन हुआ था, जैसे आपके हैकेथॉन होते हैं ना, ऐसे ही क्लाइमेथॉन 2022 हुआ था, वहाँ पर केरला के स्टार्टअप को अभी अवार्ड मिला ड्यूरिंग दिस क्लाइमेथॉन 2022। नेक्स्ट आ जाता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिसर के द्वारा अभी इंडिया की सेकेंड क्वार्टर की GDP ग्रोथ रेट रिलीज़ की गई, जो थी जुलाई से सितंबर मंथ के लिए। वो कितनी थी? 6.3%। यहीं पे अगर बात की जाए एनुअल GDP ग्रोथ रेट क्या प्रोजेक्ट की जा रही है इंडिया की, वो है अराउंड टू बी 7% फॉर द फिस्कल ईयर 23। यहीं पे याद रखेंगे जो 7% है ना, यही आपकी मूडीज़ के द्वारा भी प्रोजेक्ट की गई है, ठीक है। और अप्रॉक्स में देखा जाए ना तो 6.5 से लेके 7% के बीच में ही इंडिया की GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की जा रही है बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया एंड साउथ कोरिया। इन्होंने अभी एग्रीमेंट साइन किया फॉर EDCF लोन, ताकि जो नागपुर और मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है ना, उसको डेवलप किया जा सके, उसको और बेटर किया जा सके। तो ये इंडिया ने किस कंट्री के साथ टाइप किया एक फॉर EDCF लोन, ये रहेगा आपका साउथ कोरिया। फिर आ जाता है ओवर 160 से 200 मिलियन इंडियंस कुड बी एक्सपोज टू लीथल हीट वेव्स एनुअली एज पर द डाटा रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। इन्होंने बोला कि आने वाले 2030 के बाद तक या 2030 तक जो इंडिया में हीट वेव्स है ना, वो बहुत ज़्यादा लीथल होने वाली हैं, मतलब जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, यहीं पर इन्होंने बोला कि जो एयर कंडीशन की डिमांड होगी ना, वो बढ़ के हो जाएगी। हर 15 सेकंड में हमें एक नया एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत होगी, और 2037 तक जो एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो हमारी जो कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो 8 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ 2022। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल, ये कहाँ पर हुआ? जम्मू एंड कश्मीर की बंडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। इंपॉर्टेंट, आई रिपीट,
अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का पहला ट्राइबल विंटर फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, जम्मू एंड कश्मीर के बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। और यहीं पे याद रखेंगे ये जो फेस्टिवल था ना ये एजुकेशन के लिए था, ताकि जो वहाँ पे लोग हैं उनको एजुकेट किया जा सके अबाउट होम स्टेज, उनको एजुकेट किया जा सके अबाउट होटल मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, कि कैसे लोगों को कैटर करना है जब वो टूरिज्म के यहाँ पे अगर टूरिज्म बढ़ता है तो वो कैसे लोगों की डील्स नीड्स को कैटर करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की। ये कहाँ पर हुआ, नागा हेरिटेज विलेज इन किसामा इन नागालैंड। ये विलेज हॉर्नबिल फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है, और हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है, उसके बेसिस पे ये नाम रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 41st एडिशन ऑफ द ट्रेड फेयर, जो कि है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ये कहाँ पर हुआ, प्रगति मैदान में हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, 41st एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ पर था, प्रगति मैदान में था। और इसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया था। फिर आ जाते हैं मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने अभी चैंपियन चेस टूर को जीता 2022 के। और यहीं पे एक और याद रखेंगे जो चेस से रिलेटेड ही है, क्या, जो आर प्रज्ञनंदा है इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं, इनको अभी अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस अवार्ड से, इन्हें अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी। फिर आ जाते हैं 53rd एडिशन ऑफ इंडिया 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका 53rd एडिशन कहाँ पे हुआ था, कब से कब तक हुआ था, 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में आपका 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हमने ऑब्जर्व किया था। कहाँ पे ऑब्जर्व किया था, गोवा में। नेक्स्ट 3 इंडियन सिटीज़ याद रखेंगे, वेरंगल, थिसूर, नीलम्बुर। इन्होंने ज्वाइन किया यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू रीच $50 बिलियन बाय 2025। यूएस ने इशू किया हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट वीज़ास को टू इंडियंस इन 2022। वाइस वर्सा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंडियन स्टूडेंट्स की बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है फॉर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने कन्फर किया बंगाबंधु शेख मुजबिर रहमान स्कॉलरशिप को ऑन इंडियन स्टूडेंट्स। कैबिनेट ने अप्रूव किया एक एमओयू विद मालदीव फॉर कॉरपोरेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट और एक विद यूएई फॉर कॉरपोरेशन इन एजुकेशन सेक्टर। दोनों याद रखेंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट है। ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसका नाम है छटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया बिकेम द पावर सरप्लस नेशन। अब ये पावर सरप्लस नेशन बन गया इंडिया। फिर आ जाते हैं विराट कोहली, ये वो पहले क्रिकेटर बने हैं टू हैव द 50 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ 500 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम होने वाले वो पहले इंसान कौन बन गए हैं, वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी टू बी इस्टेब्लिश कहाँ पर, तेलंगाना में, रिमेंबर। देन एयरटेल एंड IBM ने टाइप किया फॉर एज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फॉर लार्ज फर्म्स। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। नीति आयोग होस्ट करेगा पहला शून्य फोरम को। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने रिसीव किया एक LOA फॉर 596 करोड़ रुपीज़ फॉर NHDC प्रोजेक्ट। झारखंड वो थर्ड स्टेट बन गया टू हैव फूड सिक्योरिटी एट लेस। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट के शेयर इन टोटल हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। इंडिया ने लॉन्च किया जॉइंट वाइट पेपर ऑन द अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया विद डेनमार्क। पूछा जा सकता है कि इंडिया ने डेनमार्क के साथ अभी किस चीज़ पे और अर्बन वेस्ट वाटर पे, या फिर बता ही देता हूँ कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इंडिया ने लॉन्च किया एक जॉइंट वाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो। नेक्स्ट आ जाता है वार टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप में जो कि इंडिया में हुई थी, तो वीडियो असिस्टेंस रेफरी टेक्नोलॉजी। कॉलिन दे ग्राम होम, इनको अनाउंस की, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। रोहित शर्मा, ये वो पहले प्लेयर बन गए टू स्कोर 3500 रन इन द T20 इंटरनेशनल मैचेस। ठीक है, फिर अपेक्षा फर्नांडिस, ये पहली इंडियन वीमेन बन गई जिन्होंने जीती टू रीच द WGS चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली इंडियन वीमेन बन गई। देन मैक्स वर्स्टेपन ने डच F1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को जीता। अंशिका बियानी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द मलेशियन चेस मीट, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर सुरेश रैना ने रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ड्यूरिंग इंक्लूडिंग द IPL। और IPL में ये किस टीम के लिए खेलते थे, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते थे। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके जो आज के करंट अफेयर्स हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे डिजी यात्रा की। अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बात की टू लॉन्चिंग ऑफ डिजी यात्रा, जो कि 3 एयरपोर्ट्स में यूज़ की जाएगी अभी इन द कंट्री। जो 3 एयरपोर्ट्स कौन से रहेंगे, दिल्ली का एयरपोर्ट,
यूपी का एयरपोर्ट जो कि वाराणसी में होगा एंड वाराणसी में है, एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट। और यहाँ पे डिजी यात्रा का बेसिकली क्या है, ये डिज़ाइन किया गया था ताकि जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, एज वेल एज अभी न्यूज़ आई थी जो आज से ही यहाँ पे आपका जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है ना, उसका यूज़ स्टार्ट कर दिया गया है एट द एयरपोर्ट्स। मतलब आपको कॉन्टैक्टलेस सर्विस होगी, आप एयरपोर्ट्स पे जाएंगे तो आपकी फेशियल रिकॉग्निशन से ही आपको वहाँ पे पहचान लिया जाएगा। ठीक, तो जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है डिजिटल यात्रा, इसको डिजिटल यात्रा भी कह सकते हैं, डिजिटल ट्रैवल के लिए काम आएगा ये। ठीक है, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया फॉर 3 एयरपोर्ट्स इन इंडिया भी फिलहाल, तो जो कि न्यू दिल्ली में है, वाराणसी में और बेंगलोर में। जो 3 फेज़ होंगे डिजी यात्रा के, ये इंट्रोड्यूस की जाएंगे इन 7 एयरपोर्ट्स। ठीक है, जिसमें से पहले जो 3 एयरपोर्ट्स हैं वो ये हम देख ही चुके हैं, दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी। ये तो तीनों नाम याद रखने ही रखने हैं। ठीक, फिर जो ये डिजी यात्रा प्रोजेक्ट है, ये डिजी यात्रा फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और ये डिजिटल यात्रा प्लेटफॉर्म इज बिल्ट ऑन 4 की पिलर्स: कनेक्टेड पैसेंजर्स, कनेक्टेड एयरपोर्ट्स, कनेक्टेड फ्लाइट्स एंड कनेक्टेड सिस्टम्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज। ये जॉइंट एक्सरसाइज थी अग्नि वॉरियर, जो कि सिंगापुर आर्म फोर्स और इंडिया आर्म फोर्स के बीच में ये कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, सिंगापुर आर्म फोर्स एंड इंडियन आर्म फोर्स के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई जिसका नाम था अग्नि वॉरियर। और ये अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज किस जगह पे कंडक्ट कराई गई थी, लोकेशन क्या रहेगा, वो है देवलाली, महाराष्ट्र फील्ड फायरिंग रेंज में ये आपकी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। 13 से लेके 30 नवंबर के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई और इसका 12th एडिशन रहेगा एक्सरसाइज का, जो हमने ऑब्जर्व किया देवलाली, महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखेंगे 12th एडिशन था अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज का, जो कि बायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन सिंगापुर आर्म फोर्सेस एंड इंडियन आर्मी। ये आपकी फील्ड फायरिंग रेंज में देवलाली में ऑर्गेनाइज कराई गई थी एक्सरसाइज 13 से लेके 30 नवंबर के बीच में। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन आर्मी ने अभी ट्रेन किया काइट्स को टू डिस्ट्रॉय एनिमी ड्रोन्स। आई रिपीट, इंडियन आर्मी फोर्स ने अभी काइट्स होते हैं ना, जो आपके ये चील वगैरह होती हैं, इनको ट्रेन किया ताकि जो एनिमी ड्रोन्स होते हैं या फिर कोई भी अगर यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, छोटे अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे ड्रोन्स आ गए, उनके खिलाफ ऑपरेशन लाने के लिए, उनके खिलाफ एक ट्रेन करने के लिए इनको ट्रेनिंग दी गई काइट्स को। ठीक है, ये ट्रेनिंग कहाँ, एक्सरसाइज कहाँ शोकेस किया गया, ड्यूरिंग द युद्ध अभ्यास, जो कि ऑल उत्तराखंड में भी एक्सरसाइज चल रही है। और जो ये युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है, ये 15 डे लॉन्ग एक्सरसाइज है। ये आपकी इंडिया और यूएसए के बीच में जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसका 18th एडिशन अभी ओली उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। ये एक्सरसाइज 26 नवंबर को स्टार्ट हुई थी ओली उत्तराखंड में और ये 15 डे लॉन्ग एक्सरसाइज रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया कंट्रोलर जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चिली के साथ। एंड ये MOU किस लिए था, टू सपोर्ट द कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। एंड ये था ताकि टू डेवलप इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोफेशनल कैपेसिटीज एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस से सीखने के लिए। एंड कहाँ पर, सेंटियागो चिली में। अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करूँ तो ये हेड होते हैं ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं इंडिया के, उसके हेड होते हैं। और अगर इन्हीं से रिलेटेड आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 148 रहता है कि देयर शैल बी अ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, कैग को, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, चलिए, और एक चीज़ और, कैग को ही, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो है गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा की गिफ्ट सिटी ब्रांच में इन्होंने एक फॉरेन करेंसी लोन को लॉन्च किया अगेंस्ट INR। मतलब आप अपने बैंक यहाँ पे जाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि गिफ्ट सिटी में है, गांधीनगर गुजरात में, वहाँ जाइए, INR अपने इंडियन रुपीज़ को जमा कीजिए और इसके बेसिस पे आप लोन ले सकते हैं इन फॉरेन करेंसी। जो कंपनी है, जैसे जो ओवरसीज ट्रेड कर रही हैं या दूसरी कंट्रीज़ में भी उनकी ब्रांच है, तो वो क्या कर सकती हैं, इंडियन रुपीज़ को वहाँ जमा करके और आप जिस करेंसी का भी लोन लेना चाहे वो लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन प्रोवाइड करा रहा है ऐसी फैसिलिटी, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। एंड इन्होंने ये फॉरेन करेंसी लोन अगेंस्ट INR डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन कंपनीज को लॉन्च किया फॉर देयर ओवरसीज सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर्स इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि है गांधीनगर गुजरात में। ये पहला बैंक होगा टू ऑफर दिस फैसिलिटी एट गिफ्ट सिटी। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है JK E-Cop। कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप की बात करें तो कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट द रेट ऑफ 100 इसको भी रिलीज़ किया गया था।
फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात करें, इन्होंने रिलीज़ किया एक एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इंडिया 2021 रिपोर्ट को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई? एनसीआरबी के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्ड करेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट, कहाँ पर? हजीरा, गुजरात में। इंडियन रेलवेज ने सेटअप किया मेघदूत मशीन्स को एट मुंबई स्टेशंस। टाटा स्टील ने साइन किया एक एमओयू विद पंजाब गवर्नमेंट टू सेटअप स्टील प्लांट इन लुधियाना। फिर कैबिनेट ने अप्रूव किया साइनिंग एन एमओयू बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आईसीआईसीआई बैंक ने अभी एक स्टैक लॉन्च किया फॉर कंपनीज इन रियल एस्टेट सेक्टर। अगर इस स्टैक की बात करें ये क्या रहेगा बेसिकली, पहले तो यही देख लेते हैं कि 1 दिसंबर को आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने ये स्टैक लॉन्च किया फॉर कंपनीज इन रियल एस्टेट सेक्टर। इनको ऑफर किया जाएगा सॉल्यूशन टू देयर बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। ये फर्स्ट बैंक है आईसीआईसीआई बैंक जिन्होंने इंडस्ट्री फर्स्ट इन द इंडस्ट्री टू ऑफर सच अ रियल एस्टेट स्पेसिफिक स्टैक टू प्रोवाइड अनपैरेलल्ड कन्वीनियंस टू द कंपनीज इन द रियल एस्टेट सेक्टर। ठीक है, स्टैक क्या है? ये कॉम्बिनेशन है आपका डिजिटल एज वेल एज फिजिकल सॉल्यूशंस का, जो एनेबल करता है पार्टिसिपेंट्स को ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर इंक्लूडिंग बिल्डर्स, रीट्स जो कि आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है जिसमें आप एक चंक बाय करते हैं किसी भी पोर्शन का, और जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होता है उनको अपनी ट्रांजैक्शंस करने के लिए एफिशिएंटली। यहीं पे आपने देखा होगा कि रेरा आ जाता है, रेरा की रजिस्ट्रेशंस होती हैं, फिर रेरा की रजिस्ट्रेशन में क्या होता है आपके एस्क्रो अकाउंट्स बनते हैं कि बिल्डर को बोला जाता है कि आपका जितना आप अपनी कंस्ट्रक्शन करके दिखाएंगे ना, फिर उस हिसाब से आपके एस्क्रो अकाउंट से पैसा निकलता रहेगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है आईआईएफएल म्यूचुअल फंड। इन्होंने एक इंडिया का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया जो कि ईएलएसएस फंड होता है। आई रिपीट, आईआईएफएल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया इंडिया का पहला पैसिव टैक्स सेवर फंड आईआईएफएल इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसको ईएलएस भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपका एनएफओ के थ्रू ऑफरिंग के अंडर प्रोवाइड किया जाएगा। इस फंड को मैनेज कौन करेगा? प्रजीत गर्ग इसको मैनेज करेंगे। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये स्कीम जो लॉन्च की गई थी ये कब के जो ये आपका एनएफओ न्यू फंड ऑफरिंग है ये कब से कब तक लॉन्च किया जा रहा है? तो याद रखेंगे इसकी जो डेट है वो है आपका 1 दिसंबर से ये एनएफओ लॉन्च किया जाएगा, पहले 1 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक। ठीक है, और जो स्कीम विल अगेन रीओपन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रिडम्पशन फ्रॉम 2 जनवरी 2023। नेक्स्ट बात करेंगे बुक माई फॉरेक्स। बुक माई फॉरेक्स के द्वारा भी एक इंटरबैंक रेट फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया गया जो इंडिया का पहला ट्रू जीरो मार्कअप ट्रैवल कार्ड होगा। इस कार्ड के अंदर आप कुछ 13 करेंसीज को अपने कार्ड में रख सकते हैं, अपने अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको ट्रांजैक्शन करना होगा ना, आपको इससे ईजिली आप इसको ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। और यहीं पर इस कार्ड के थ्रू आप ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 35 मिलियन स्टोर्स पर, कुछ 1 मिलियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर, वेबसाइट्स पर एंड ओवर 2 मिलियन एटीएम्स पर आप इसको यूज़ कर पाएंगे इस कार्ड को। तो याद रखेंगे ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्लेस जो कि bookmyforex.com इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया? इंटरबैंक रेट मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया गया जो इंडिया का पहला ट्रू जीरो मार्कअप ट्रैवल कार्ड रहेगा। इस कार्ड को इंटरबैंक रेट मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड को डेवलप किया गया किसके साथ मिलके? येस बैंक एंड M2P फिनटेक के द्वारा मिलके इन एसोसिएशन विद येस बैंक एंड M2P फिनटेक के साथ मिलके बुक माई फॉरेक्स ने ये इंटरबैंक रेट मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च करा है। अगर मैं यहीं पे bookmyforex.com की बात करूं तो फाउंडर एंड सीईओ कौन रहेंगे? सुदर्शन मोटवानी, और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट आ जाता है सिटी यूनियन बैंक को ऑथराइज किया गया टू एनेबल जीएसटी पेमेंट्स। आई रिपीट, Goods and Service Tax Network under the auspices of the GST Council has listed City Union Bank, an old private sector institution, as one of the banks that can pay GST. City Union's bank digital solution include digital signatures, QR codes, video KYC and digital payment solutions such as UPI 123 Pay, payment on the go using wearables, increased payment limit for the online transaction and soft launch of voice biometric verification of mobile banking. नेक्स्ट बात करते हैं टाटा प्ले। टाटा प्ले को पहले क्या नाम से जाना जाता था? टाटा स्काई। ये पहली कंपनी बन गई है टू फाइल अ कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस विद द सेबी फॉर इट्स आईपीओ। दिस विल बी द टाटास फर्स्ट आईपीओ इन 2 decades। और दिस ग्रुप ने
जो टाटा ग्रुप है, इन्होंने पहला जो आईपीओ लॉन्च किया था, दे एंटर्ड इनटू द प्राइमरी मार्केट थ्रू टीसीएस इन 2004। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू 2022 के बर्गंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 500 की लिस्ट के हिसाब से इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल फर्म कौन सी है? रिलायंस इंडिया लिमिटेड, RIL इंडिया की सबसे मोस्ट वैल्यूड फर्म रहेगी एज पर टू 2022 बर्गंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 2022 की लिस्ट के हिसाब से। फिर यहीं पे याद रखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे तो आ जाती है RIL। ठीक है, और RIL की ही अगर मैं बात करूं तो इनकी वैल्यू कितनी रहेगी? अराउंड 17.2 लाख करोड़ की। यहीं पे सेकंड पोजीशन पे कौन सी कंपनी आ जाती है? आपकी TCS आ जाती है, इसकी वैल्यू रहेगी 11.7 लाख करोड़ की। और थर्ड पोजीशन पे आ जाती है आपकी HDFC, ठीक है, बैंक। ये आपकी थर्ड पोजीशन से विद इन वैल्यू ऑफ 8.3 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बुक की, जो कि है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज की हम बात करेंगे। ये अवार्ड से किस बुक को सम्मानित किया गया? वो है द चिपको मूवमेंट। ठीक है, द चिपको मूवमेंट इन बुक को, जो कि है अ चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट, ये बुक को अभी रिसेंटली आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 से सम्मानित करा गया था। इस बुक को ऑथर किसके द्वारा किया गया है? शेखर पाठक जी के इस बुक को ऑथर किया गया, और इस बुक को ट्रांसलेट किया गया था इन हिंदी बाय मनीषा चौधरी, और ये 5th एडिशन थी ऑफ दिस कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज, जो ये हमें ऑब्जर्व किया। और ये 5th एडिशन किनको मिला? द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट। ठीक है, इनको इस बुक से सम्मानित किया गया था, इस अवार्ड से सम्मानित किया था फॉर दिस बुक। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें इस अवार्ड के बारे में पढ़ें तो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज ये 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड गिवन फॉर नॉन फिक्शन ऑन कंटेम्प्रेरी इंडिया बाय राइटर्स ऑफ एनी नेशनैलिटी, कैरिंग अ कैश अवार्ड ऑफ 15 लाख रुपीज़। एक ट्रॉफी और एक साइटेशन भी यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं मंथन प्लेटफॉर्म की। इन्होंने अभी बेस्ट टेक इनिशिएटिव अवार्ड जीता है एट डन एंड ब्रैडस्ट्रीट बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के दौरान। आई रिपीट, मंथन प्लेटफॉर्म ने बेस्ट टेक इनिशिएटिव अवार्ड जीता एट डन एंड ब्रैडस्ट्रीट बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के दौरान। और ये कहाँ पे हुआ था इवेंट? ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था ये इवेंट। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है JK E-कॉप। कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप की बात करें तो कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट द रेट ऑफ 100 इसको भी रिलीज़ किया गया था। फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात करें, इन्होंने रिलीज़ किया एक एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इंडिया 2021 रिपोर्ट को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई? NCRB के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्ड करेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट, कहाँ पर? हजीरा, गुजरात में। इंडियन रेलवेज ने सेटअप किया मेघदूत मशीन्स को एट मुंबई स्टेशंस। टाटा स्टील ने साइन किया एक MOU विद पंजाब गवर्नमेंट टू सेटअप स्टील प्लांट इन लुधियाना। फिर कैबिनेट ने अप्रूव किया साइनिंग एन MOU बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नेक्स्ट आ जाता है सेंटर के द्वारा एक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव लॉन्च की गई जिसका नाम है पालन 1000। ये एक नेशनल कैंपेन था और एक ये पेरेंटिंग ऐप है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सरकार के द्वारा एक नेशनल कैंपेन एंड एक पेरेंटिंग ऐप नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की गई, उसका नाम बताओ। तो क्या नाम रहेगा? पालन 1000। फिर पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 14 अगस्त को, एक दिन पहले इंडिपेंडेंस डे से हम ऑब्जर्व करते हैं पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। फिर वर्ल्ड संस्कृत डे कब ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड संस्कृत डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 अगस्त को। इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कीजिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है नासा और एक्सियोम स्पेस, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ ताकि प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जा सके बाय 2023। अगर यहीं पे मैं बात करूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तो रशिया यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एग्जिट कर देगी बाय 2024। इंडिया अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है बाय 2030, और चाइना का टियांगोंग स्पेस स्टेशन भी बन के रेडी हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2022 या फिर बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया ने अभी सेकेंड टाइम अज्यूम करी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी फॉर दिसंबर मंथ। लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं पिछले 2 सालों में इन्होंने ये दूसरी बार
अज्यूम की है प्रेसिडेंसी फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इससे पहले मैं बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी अगस्त 2021 में इंडिया ने अज्यूम की थी, और अब सेकेंड टाइम इन्होंने दिसंबर 2022 के लिए अज्यूम की इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। फिर बात करते हैं आरबीआई ने अभी कंडीशनल अप्रूवल दिया है कैरलिल ग्रुप को एंड वेरवेंटा होल्डिंग्स को, ताकि वो 10% स्टेक बाय कर सके इन येस बैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। कंडीशनल अप्रूवल मिला है आरबीआई की तरफ से कैरलिल ग्रुप को एंड वेरवेंटा होल्डिंग्स को, ताकि वो 10% स्टेक बाय कर सके इन येस बैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, याद रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और यहीं पे अगर बात की जाए, जो बैंक है नाउ प्लान्स टू इशू 3,700 million shares on a preferential basis at 13.78 per share rupees और 2,570 million warrants at 14.82 पर शेयर। चलिए नेक्स्ट पे फिर आते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे को। इम्पॉर्टेंट है ये, ताकि ये डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, टू रेज पब्लिक नॉलेज ऑफ अबाउट कंप्यूटर्स एंड एनकरेज करने के लिए लोगों को, ताकि वो कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स को ले सके। क्योंकि आज की जनरेशन में आप देखेंगे कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स आपको आनी चाहिए टू लैंड अ जॉब इन फ्यूचर। दिस डे ऑल्सो एम्स टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी एंड रेज अवेयरनेस इन द अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज अक्रॉस द ग्लोब, एंड 2022 मार्क्स द 22nd वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। फिर आ जाते हैं नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 दिसंबर को हम नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व करते हैं। रीज़न बीइंग क्या है कि 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उनके में जो विक्टिम्स थे उनको ऑनर करने के लिए ये हम डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। ये कब हुई थी? 2 एंड 3 दिसंबर 1984 में हमें ये ऑब्जर्व देखने को मिली थी, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी। और याद रखेंगे ये आपका 38th एनिवर्सरी है 2022 में जो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये भोपाल गैस ट्रेजेडी कहाँ पे हुई थी? ये यूनियन कार्बाइड प्लांट में हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में 2 एंड 3 दिसंबर को 1984 में। और यहाँ पे जो गैस रिलीज की गई थी 45 टन्स ऑफ हजार्डस गैस, वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। इससे अराउंड 25,000 लोगों की डेथ हुई थी एंड मोर देन 6 लाख विक्टिम्स थे जिनको इंजरीज आई थी बिकॉज ऑफ दिस ट्रेजेडी। आगरा अग्रेरियन फेस्टिवल ये आपका नौखाई फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? उड़ीसा में। फिर यूआईडीआई ने टॉप किया ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगर यहीं पे मैं पूछूं अंबुबाची फेस्टिवल ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? अंबुबाची ये आपका असम में ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। फिर याद रखेंगे इंडिया का पहला एलएनजी फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक लॉन्च किया गया बाय ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है एक ई गवर्नेंस पोर्टल जिसका नाम है स्मर्थ। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन्होंने एक एमओयू साइन किया स्मिथ्स डिटेक्शन के साथ टू मैन्युफैक्चर स्कैनिंग सिस्टम्स। इंडिया का पहला एनईपी 2020 कंप्लायंट लॉ स्कूल लॉन्च किया गया बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज जिसका नाम है वेंचू राइज। इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी टू बी सेटअप इन लद्दाख। अमित शाह ने लॉन्च किया एक मैस्कॉट ऑफ द 36 नेशनल गेम्स इन अहमदाबाद, और ये कहाँ पे हुए थे गेम्स? गुजरात में, ठीक है, याद रखेंगे। सिर्फ साइकिलिंग इवेंट दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है त्रिपुरा ने सेटअप किया इंडिया का पहला बायो विलेज। इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड अ वाटर शेयरिंग पैक्ट। पीएम मोदी वर्चुअली एड्रेस द प्लेनरी सेशन ऑफ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। इंडिया एंड यूके कंडक्टेड अ मेगा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। 26 कंट्रीज में इन्होंने पार्ट लिया यहाँ पर। स्टरलाइट पावर ने कमीशन किया 400 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन गुजरात में। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। इन्होंने इम्पोज किया एक पेनल्टी ऑफ 3500 करोड़ रुपए ऑन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर वेस्ट मैनेजमेंट फेलियर। राजस्थान ने लॉन्च किया अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को। अदानी ग्रुप ने बिल्ड किया 3 गीगा फैक्ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ $70 बिलियन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, मास्टरकार्ड ने रिप्लेस किया पेटीएम को एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बीसी। नेक्स्ट पे आते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। 2 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्होंने डिजी यात्रा लॉन्च किया 3 एयरपोर्ट्स के लिए इंडिया में।
अग्नि वॉरियर 2022 वॉज एक्सरसाइज बिटवीन आर्म फोर्सेज ऑफ सिंगापुर एंड इंडिया, जो कि देवलाली महाराष्ट्र में कंक्लूड की गई। इंडियन आर्मी ने ट्रेन किया काइट्स को टू डिस्ट्रॉय एनिमी ड्रोन्स। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ चिली, इन्होंने एक MOU साइन किया टू सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग। RBI ने अडॉप्ट किया 4 टायर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर UCB, साइन अ लेटर फॉर कॉपरेशन विद FSA जापान। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया फॉरेन करेंसी लोन अगेंस्ट INR डिपॉजिट। ICICI बैंक ने लॉन्च किया एक स्टैक फॉर कंपनीज इन रियल एस्टेट सेक्टर। IIFL म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया इंडिया का पहला पैसिव टैक्स सेवर फंड IN50। देन बुक माई फॉरेक्स, इनके द्वारा एक इंटर बैंक रेट फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया गया, जो कि इंडिया का पहला ट्रू जीरो मार्कअप ट्रैवल कार्ड रहेगा। सिटी यूनियन बैंक ने ऑथराइज किया टू एनेबल GST पेमेंट्स। फिर टाटा प्ले वो पहला फर्म बन गया टू फाइल कॉन्फिडेंशियल DRHP विद सेबी फॉर IPO। IDFC AMC टू बी रीनेम्ड एज बंधन म्यूचुअल फंड एज रेगुलेटर्स अप्रूव फॉर चेंज इन ओनरशिप। 2022 की बरगंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 50 की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मोस्ट वैल्यूड फर्म है इंडिया की। फिर एक बुक थी बुक ऑन चिपको मूवमेंट, जिनको अभी कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज से सम्मानित किया 2022 के लिए, और ये 5th एडिशन का प्राइज था जो इनको दिया गया है। फिर मंथन प्लेटफॉर्म की बात करें, इन्होंने बेस्ट टेक इनिशिएटिव अवार्ड जीता एट डन एंड ब्रैडस्ट्रीट बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के दौरान। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया ने अज्यूम की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर दिसंबर मंथ, और इससे पहले अगस्त 2021 में इंडिया के पास थी प्रेसिडेंसी फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और अब दिसंबर 2022 में इंडिया के पास रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है, RBI ने ग्रांट किया कंडीशनल अप्रूवल टू कैरलेल ग्रुप एंड वेदांता होल्डिंग्स टू बाय 10% स्टेक इन येस बैंक। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे की बात करें तो 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे आपका 2 दिसंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ये भी आपका 2 दिसंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया, अच्छे से पढ़ रहे हैं आप, तो आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पे। पहला, विच स्टेट हैज़ हायर्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मैकेंजी टू अचीव द टारगेट ऑफ डबलिंग इट्स GSDP। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली यूज स्टीम टू प्रोपेल मून्स एयरक्राफ्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसी के साथ साथ उनकी स्पेस एजेंसी का भी नाम बताएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ द फ्लैगशिप कल्चरल इवेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट, और ये हॉर्नबिल किसी बर्ड के नाम, हॉर्नबिल बर्ड के नाम पे ही इनका फेस्टिवल का नाम भी रखा गया है। फोर्थ, अग्नि वॉरियर इज़ अ बायलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और किस कंट्री के बीच में कंडक्ट कराई गई। फिफ्थ आ जाता है, इंडिया ने सपोर्ट किया प्रपोजल ऑफ विच कंट्री टू इंक्लूड डिजिटाइजेशन इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान। तो ये है 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन फ्रेंड्स। कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं एक सजेशन दूंगा कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.